Sorry, what? कॉलेज में सेल्स रिटर्न हुआ, उसके बाद सेल्स रिटर्न बोलो, सेल्स रिटर्न दोनों मत दिखाना तो पड़ेगा ना कितना रिटर्न हुआ, इफेक्टिव गुड्स का रिकॉर्ड भी सारे हमारा लास्ट टाइम टेस्ट चलो ले लो फटाफट BRS ले लो, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Pay attention. So in the last lecture we started with bank reconciliation statement. Is that right? What was a BRS? You have done already your cash book, right? What is a cash book? It is a subsidiary book to record all the cash and bank transactions. बराबर है? पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट. अपना कैश बुक जनरली हैज गॉट टू कॉलम्स, कैश एंड बैंक कॉल, बराबर है. बट हियर इन केस ऑफ BRS, when we make a bank reconciliation statement, we consider only one column. What is that one column? Bank column. And we compare it with another book that is called as passbook. We compare it with another book that is called as passbook. Who maintains the passbook? Bank. The bank. Bank maintains the passbook. We maintain the cash. क्या हो गया आपको? नहीं पता तो सर एक्टिविटीज नहीं है? मैं होपफुली नहीं है चलो वो पूरी वाली चश्मा पहन के आएगा. Now we are comparing our cash book with the passbook. We are comparing our cash book with the passbook. Who maintains the passbook? Passbook कौन मेंटेन करता है? बैंक. So what is passbook? Customers account in the books of bank. बैंक के बुक में हमारा अकाउंट, that is called as passbook. और हमारे बुक में बैंक का अकाउंट, that is called as cash book. So we maintain cash book and bank maintains passbook. Our debit side is receipt side and credit side is payment side. Passbook में उल्टा है, debit is payment, credit is receipt. Why do they do this in the opposite manner? Because they think from their own point of view. We think from our point of view, bank thinks from their point of view. Exactly. That's why the sides are opposite. बाकी receipt, हमें पैसा मिला मतलब बैंक में पैसा आया, हमारे पास से पैसा गया मतलब बैंक के पास से पैसा गया.
दैट अमाउंट, दैट इज सेम थिंग. ऐसा मत सोचो कि हमारे पास पैसा आया तो बैंक से गया, या हमारे पास से गया तो बैंक में आया. इट इज नॉट द ऑपोजिट वे. वी रिसीव, बैंक रिसीव्स. वी पे, बैंक pays. Is that clear? Now, so ultimately, whatever items we record on the debit side of cash book are also recorded on the credit side of passbook, and vice versa. Whatever transaction we record on the credit side of cash book are also entered by the bank in the debit side of passbook. So, at the end of the day, at the end of the month rather, balance as per, at the end of the month, at the end of the month, balance as per both the books should be same or different. It should be same because both the entries have appeared in both the books. खाली क्या होगा, नेचर अलग होगा. इसका डेबिट उसका क्रेडिट, और इसका क्रेडिट उसका डेबिट, वाइस वर्सा. बराबर. बट ड्यू टू सम रीजंस दिस बैलेंस इज नॉट same. Due to some reason this balance changes, this balance differs. बराबर है. Why does this balance differ? We have seen that also. ये बैलेंस अलग क्यों होता था? एंड ऑफ द मंथ में एंड ऑफ द मंथ में आप कोई चेक्स डिपॉजिट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिपॉजिट अ फ्यू चेक्स at the end of the month, so they have been recorded in the cash book, but do they appear in the passbook in the same month? No, because it takes a couple of days to clear the checks. Similarly, you have made a few payments in the cash book, checks issue कर दिए, लेकिन same month में clear नहीं हुआ, या बैंक ने कोई पेमेंट्स किया हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने कोई अमाउंट रिसीव किया हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस. व्हाट डू वी कॉल देम? टाइमिंग डिफरेंस. कोई चेक्स यहाँ है वहां नहीं है, वहां है यहाँ नहीं. So due to this reason, there is a difference in the balance. Sometimes there is a difference in the balance. So in order to find out the reason of difference, to show the list of reason of difference, we make something that is called as what? Bank reconciliation statement. So what is bank reconciliation statement? Basically, it is a list of reasons. It is simply list of reasons between the difference, list of reasons of the differences between the balance as per cash book and balance as per passbook. List of reason ही है और कुछ नहीं है. Are we supposed to correct it? Are we supposed to rectify it? Are we supposed to make any changes in cash book? Are we supposed to make any changes in passbook? Nothing like that. It is simply a list of reasons of differences between balance as per cash book and passbook. Okay. इसमें आपको एक बैलेंस दिया होता है और आप दूसरे बैलेंस पे अराइव होते हैं. नॉर्मली प्रैक्टिकली आपके पास दोनों बैलेंसेस अवेलेबल होते हैं. दिस इज व्हाट यू विल डू इन आर्टिकलशिप. अगर सीए कर रहे हो तो आर्टिकलशिप में आपके पास कैश बुक भी होता है, पासबुक भी होता है, और आपको रिकंसाइल दोनों का बैलेंस जो मैंने आपको बना के बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आप सिर्फ चेक करते हो यहाँ पे एक एंट्री है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक एंट्री है, यहाँ पे नहीं है, मार्क करो, टिक करो, कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे, और डिसाइड कर लो क्या प्लस करना है क्या माइनस, और बैलेंस मैच होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली आप जब थियोरी क्वेश्चंस कर रहे हो तभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते. दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट मेथड. दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट मेथड. ये ऐसे भी प्रॉब्लम डाला हुआ है आपका नोट्स में. अगर आप देखोगे सम नंबर 9 है, या फिर सम नंबर 16 है, या फिर सम नंबर 24 है, या 27 है. दिख रहा है आपको? 9, 16, 24, 27. इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट मेथड. क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट. दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ डूइंग अ बीआरएस. प्रैक्टिकली आप ऐसे ही करते हो बीआरएस में, एक्सट्रैक्ट मेथड बनाते हो. ठीक है, उसमें भी सेम मंथ एक्सट्रैक्ट होता है, डिफरेंट मंथ एक्सट्रैक्ट होता है. सो यहां पर एक्सट्रैक्ट मेथड अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस डोंट टेक. ओके, विल बी डूइंग दैट कपल ऑफ सम्स ऑफ एक्सट्रैक्ट आल्सो. बट आपको ये वाला है, नॉर्मल वाला, एक्सट्रैक्ट वाला नहीं है, आपको नॉर्मल वाला मेथड है. नॉर्मल वाले मेथड में क्या होता है? नॉर्मल वाले मेथड में आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो. विल बी हैविंग वन स्टार्टिंग पॉइंट गिवन टू यू, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू फाइंड आउट द अदर बुक का स्टार्टिंग पॉइंट. दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस. So you will be given the balance as per cash book,
और बोलेंगे पासबुक का ढूंढो, आप ढूंढो, या बोलेंगे पासबुक का बैलेंस दिया और आप कैश बुक का ढूंढो। उसको ढूंढने के लिए याद है वो हैंड रजिस्टर वाला मेथड मैंने बताया, पैसा आया कि पैसा गया। लेफ्ट हैंड साइड लेटर से कैश बुक, राइट हैंड साइड लेटर से इट इज पासबुक। दोनों 1-1 लाख अज्यूम करो। फिर अगर चेक डिपॉजिट किया 10,000 का तो कौन से बुक में एंट्री आया? चेक डिपॉजिट कैश बुक गोes up, पैसा आया तो आप want to move from cash book to passbook would be lower comparatively, so you subtract. तो सेम मंथ में लॉजिक क्या है, एक पैसा कैश बुक में आ गया लेकिन पासबुक में नहीं आया, पासबुक बैलेंस इज गोइंग टू बी lesser as compared to cash. Similarly, if इश्यू किया हुआ चेक तो दोनों 1-1 लाख पे चेक इश्यू किया है, this becomes 90,000, this is still on 1 lakh, so you add them. So you have to just compare it. If the cash book is more than the passbook, you subtract. If the cash book is less than the passbook, you add. Vice versa, if passbook is more, you are supposed to add. If passbook is less, you are supposed to subtract. Okay. Just compare the balance as per two books. एक बार नया कहा गया तो it's very simple. लॉजिक के साथ रहना, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि एक बुक में पैसा आ चुका है दूसरे बुक में नहीं आया, जाहिर सी बात है बैलेंस इसका कम होगा, यहां से यहां जाना तो माइनस ही करो। और एक बुक में अगर पैसा जा चुका है दूसरे बुक में से नहीं गया तो इसका बैलेंस ज्यादा होगा, तो नीचे से ऊपर जाने दो, सपोज टू ऐड, सिंपल एज दैट, गॉट इट? ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। आई थिंक 2 प्रॉब्लम के एरोज हमने बनाए थे और आपको स्टेटमेंट्स मैंने बोला था छोड़ने के लिए जगह, बराबर है, only to leave sides for statements. Now let's understand this. सर एक हमें भी देते 15 है, 30 है। ये है ना, छोटा है, इसमें छोटा ही लगेगा, बड़ा लगेगा तो भी। See, 2 sums we did in the last lecture. So what is a BRL? Is it a part of journal? No. Or ledger? Are we supposed to make any entries, pass any entries? No. It is just a statement, a list showing the reasons of difference between what? Cash book balance and passbook balance. Okay? Ideally दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा, दोनों सेम है तो BRS की मोटा मोटी जरूरत पड़ती नहीं, बट अलग हो जाते हैं, that time you need it. Correct? I think we did 10 and 20, right? Yeah. See now. Sum number 21. एक साइड छोड़ना है स्टेटमेंट के लिए, घड़ी घड़ी बोलूंगा नहीं, हर एक सम में छोड़ते जा, ठीक है? लीव वन साइड फॉर स्टेटमेंट। सी सम नंबर 21, 21st sum, page 73, page 73, sum number 21. देखो, passbook showed a balance of 3,500 on 30th September 2011. On the same day, cash book showed a balance of 3,170. अभी for a change आपको दोनों बैलेंस दे दिया है, पासबुक का भी दिया हुआ है और कैश बुक का भी दे दिया। अभी आपकी मर्जी, आपको कहां से कहां जाए। आप पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेके कैश बुक का ढूंढ सकते हो, कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेके पासबुक का ढूंढ सकते हो। As of now, we'll be going from cash book to passbook, normally जैसा कर रहे हैं। So मतलब बोले मतलब I'll start with 3,170 and after doing plus minus, my final answer should be what? 3,500. वो मैच होना ही चाहिए, okay? Otherwise it doesn't make sense. आपने कुछ wrong किया। Let's begin. 30th September को कैश बुक का बैलेंस था 3,170, तो क्या लिखने का? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 3,170, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 3,170। मिला?
Bank balance as per cash book is 3170. Now, this is your cash book जो मैंने hand gesture से बताया था, and this is your cash book, and we are starting with normal balance. How do you recognize it is normal? ओवरड्राफ्ट नहीं है, नॉर्मल है, बैंक बैलेंस है, बराबर ना. बैंक बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस, शोल्डर बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस. डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट. अब नॉर्मल मतलब ओवरड्राफ्ट. दिस इज नॉर्मल. फर्स्ट वन, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स 400 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. तो बैंक ने कलेक्ट किया, कौन से बुक में एंट्री आया होगा? पासबुक में आया होगा. पासबुक में पैसा आया कि गया? तो वर्टिकल एरो मैंने पैसे के लिए बताया था, आपको याद होगा. तो पैसा आया, तो वर्टिकल एरो गोस अब. तो पासबुक में कितना पैसा आ गया? 400. व्हाट अबाउट कैश बुक? ये पैसा रिकॉर्ड हुआ है. व्हाट इफ अगर हो जाता, बैलेंस आउट हो जाता, नलिफाई हो जाता. सो यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इफ द एरो इज मूविंग अपवर्ड्स then you add. The arrow is moving upwards, then you add 400. याद आया? Always move from left to right. Always move from left to right. If the arrow is moving upwards, you add. If it is going downwards, you subtract. Logic क्या है? ये पैसा कौन से बुक में आया है? पासबुक का बैलेंस बढ़ चुका है. कैश बुक का बढ़ा है कि नहीं? तो हमारे पास कैश बुक का है, पासबुक का कैश बुक से ज्यादा ही होगा, इसलिए ऐड किया. सो कैश बुक टू पासबुक जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाना है हमेशा. चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट पेड. अभी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब क्या? पेड इनटू बैंक मतलब पैसा दिया कि पैसा आया? आया. पेड इनटू द बैंक, पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड. उसको अंडरलाइन करके लिखो. तो सर ऐसे तो पैसा गया ही ना, तो आपका क्या? मैं अभी क्या बोला? बैंक हमारा ही है, हमारे पास पैसा आया मतलब बैंक में पैसा सर है. हमारा पैसा ही तो. अरे पैसा नहीं गया, चेक डिपॉजिट किया है. फिर कैश भी डालना तो भी अपने ही बैंक में जा रहा है, वो अलग चीज बताता हूँ. बट पेड इनटू बैंक मींस डिपॉजिटेड. और डिपॉजिट आप कौन सा चेक करोगे? आया हुआ चेक कि दिया हुआ चेक? दिया हुआ तो सामने वाली पार्टी करेगी ना डिपॉजिट, हम थोड़ी करेंगे. आया हुआ चेक वी विल डिपॉजिट. सो कौन से बुक में एंट्री रिकॉर्ड होगी? पहले एंट्री कौन से बुक में आया होगा? कैश गोज अप और डाउन. कैश बुक गोज अप बाय 570, नॉट एंटर्ड इन पासबुक. जाना चाहिए था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था. कैन आई से पासबुक बैलेंस इज लेसर कंपैरेटिवली. सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? Left to right, left to right. If it goes downwards, then you subtract. If it goes upwards, then you add. Simple. पैसे का ही लॉजिक है, पैसे का फंडा बैठ गया. BRS is a cakewalk. देखो, discounted bill dishonored 750 debited by the bank, but no intimation was received from the bank. अभी what is discounted bill dishonored? ये कंसेप्ट आपको है ना 12th स्टैंडर्ड में आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, उसमें आएगा. फिलहाल फॉर अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, ओके, छोटा सा पार्ट में समझो इसको क्या है. डिटेल में 12th में आएगा. बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल सुना है आपने? व्हाट इज अ बिल रिसीवेबल? से फॉर एग्जांपल मेरे को शुभम से मेरे को पैसा लेने का 10,000 रुपए. तो शुभम बिकम्स माय डेट. मेरे को इस पर भरोसा नहीं है कि पैसा नहीं देगा तो ओके, मेरे को और सिक्योरिटी चाहिए. तो मैं क्या करेगा? डॉक्यूमेंट ड्रॉ करेगा. द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज. उसमें मैं लिखेगा कि शुभम इज सपोज टू पे मी 10,000 आफ्टर अ पीरियड ऑफ शुभम इज सपोज टू पे मी 10,000 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 months. ओके, आई विल साइन इट और मैं इसका साइन ले लेगा. तो ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए होगा बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए वही हो जाएगा बिल्स पेड. तो इसके लिए बुक एंट्री पास होती है. मेरे बुक में एंट्री आएगी BR बिल्स रिसीवेबल एज एन एसेट बढ़ा और शुभम एज अ डेटर घटा. तो आई विल पास बिल्स रिसीवेबल टू शुभम और शुभम ऑपोजिट करेगा, वो बोलेगा विशाल सर टू क्रेडिटर. विशाल सर घट गए और क्रेडिटर बढ़ गया. ऐसा विशाल सर टू बिल्स पेबल. तो क्रेडिटर घटा और बिल्स पेबल बढ़ गया. क्रेडिटर कम हो गया इसके लिए और बिल्स पेबल बढ़ गया. इसके बुक में भी लायबिलिटी हो जाएगी बिल्स पेबल
और मेरे लिए एसेट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। अभी सीन क्या है, तो बिल्स रिसीवेबल इज सिमिलर टू डेटर, मैं आपको बोलता था सिमिलर टू डेटर, मतलब अभी शुभम से पैसा नहीं लेना है मेरे को, बिल्स रिसीवेबल से पैसा। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सब बताऊंगा मैं आपको बाद में। इसमें क्या होता है, ये चीजें आप ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसकी एक फैसिलिटी दी जाती है। क्या फैसिलिटी है? एक तो गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मेरे को 2 महीने बाद अभी ये चेक मार के पैसा देगा, नहीं देगा तो मैं कोर्ट में जाके केस कर सकता है इसको। बट अभी ये मेरे को कब पैसा देगा बिल का? आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 months। बट अभी मेरे को पैसे का जरूरत है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक दैट बिल ऑफ एक्सचेंज, आई कैन गो टू द बैंक, आई कैन सेल इट। मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को बेच सकता हूं, ताबड़तोड़ पैसे ले सकता हूं। लेकिन सीन क्या होगा, बैंक है ना मेरे को 10,000 नहीं देगा, 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं आज जाऊंगा ना बैंक में और बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगा ना, बैंक मेरे को 10,000 नहीं देगा, बैंक मेरे को देगा शायद 9,900। कितना देगा? 100 रुपया काट लेगा। काय को काटेगा? चार्जेस है उसका, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है। क्योंकि बैंक को क्या करना है, अभी बैंक देखेगा हाँ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों की साइन है, ले लेगा, मेरे को 9,900 मिल गए। 2 महीने बाद जब डेट आएगी ना बिल ऑफ एक्सचेंज की, 2 महीने बाद ड्यू डेट बोलते हैं उसको, तो बैंक जाएगा शुभम के पास और उससे 10,000 रुपए ले लेगा। तो बैंक विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम शुभम बट आफ्टर 2 months। बट बैंक को मुझे आज ही पैसा देना है, तो बैंक विल गिव मी हाउ मच? 9,900 एंड बैंक विल कलेक्ट हाउ मच फ्रॉम हिम? बीच में 100 रुपया उसका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आ गया, उसका चार्जेस आ गया, सर्विस चार्ज आ गया, सारा कुछ आ गया उसके अंदर, प्रॉफिट भी आ गया उसका। इज दिस पार्ट क्लियर? सो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। मैं बैंक में गया और 9,900 निकाल लिए ना बैंक से ताबड़तोड़, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। आई सोल्ड द बिल टू द बैंक एंड टुक द मनी, दैट्स कॉल्ड डिस्काउंटिंग। And when the bank approaches Shubham after 2 months and if he pays that money, it is said that the bill is honored. It is said that the bill is इज्जत रखा, 2 महीने बाद पैसा दे दिया, bill is said to be honored. But अगर शुभम ने पैसा नहीं दिया, then it is said that the bill is dishonored. अभी प्रॉब्लम आ गई। अभी बैंक गया शुभम के पास, शुभम ने पैसा नहीं दिया। ये बैंक हमारा बैंक नहीं है, कोई तीसरा बैंक है। ये बैंक शुभम के पास गया और इसने पैसा दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तो बैंक हमें अप्रोच करेगा, भैया देखो ये शुभम ने पैसा नहीं दिया, ना बोल रहा है, तो किससे लेगा पैसे? छोड़ेगा क्या वो?